So, very good morning, friend. Once again, I welcome you all for our last part of this unit number 4, which comprises of the concrete mix design procedure as per road note number 4. And also, we will see, as I have told you earlier, that one of the mix design procedure as per Indian standard that I have actually done. Uh, During the discussion, I will tell you in which work that has been done. That I will be discussing. First, the Indian Standard 10262. Uh, One of the practical mix design I have performed, I have done, and then the road note number 4. Okay. This is the mix design for the RCC M40 20 MSA. Okay. The concrete is reinforced concrete, because why this reinforced concrete is needed? uh, we need it for to find out the durability from the table number 5 of page number 20 of Indian Standard 456 2000. ठीक है, उसमें से ये देखना है, इसलिए ये सब हमें जरूरी है, आरसीसी रीइंफोर्स कंक्रीट, क्योंकि उसमें एक्सपोजर कंडीशन वगैरह सब और उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है M40 20 MS. So therefore grade of the concrete is M40. Mix 40 Newton per mm square or 400 kg per cm square. Degree of quality control has been given as good. Standard deviation, it has been given in Indian Standard 10-62 2009. It was when I designed it, it was 2007. It was later on updated to 2009, and now it is 2019. Okay, so standard deviation value is 5. Again, please go through that table number 2 or 3, wherein the standard deviation value is given for M40 and for the good quality control. Okay, then type of the exposure is moderate. Again, table number 5, page number 20, Indian Standard 10-62. The K value is 1.62. Again, Indian Standard 10-62. Therefore, the target means. So, with this data and the remaining data as per the page number 1 of our data sheet, that is step number 1, the site engineer has submitted me. I was the quality control engineer at that time. It was the grade of the concrete, or this concrete is needed for the tunnel work. Okay. Maximum of you, or some of you must be residing in Brahmapuri or Nagbhid, nearby Nagbhid. Okay. Or Mool, say, but in between Brahmapuri and Nagbhid, there is a canal, and the underground tunnel work is there. So there I was supervising the work as a quality control in charge. At that time, I designed this mix. So maximum size of aggregate 20. Then the target mean strength, we have the formula F-CK, that is target mean strength is equal to characteristic strength plus this K value constant, Hemsworth constant. It is always 1.65, and standard deviation is 5. Therefore, F-CK is equal to 40 plus 5 into 1.65, that is 48.25 Newton per mm square, or 482.5 kg per cm square. Okay. The only thing is you have to multiply it by 10. It gets converted into kilogram per centimeter square. Okay. So 48.25 Newton per mm square is equal to 482.5 kg per cm square. Always keep this in mind. So this is the, you can say, the first step is data preparation. Second step is the testing of the material. That has been done by me. It is not mentioned here. The next step is finding the target mean strength. Okay, as I have told you, these steps are needed to write down in exam also. कोई भी आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप मालूम रहना चाहिए.
ठीक है, आपको याद होगा कि उसकी नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो. ओके, अगेन दिस वाटर सीमेंट रेशियो इज नीडेड टू बी फाउंड आउट from the table number 5, page 20 of Indian Standard 456. Okay, that table number 5, page 20 of Indian Standard 456 gives the water cement ratio for the M40 20 MSA or M40 is 0.4. Okay, but I adopted the water cement ratio as 0.36 because earlier I have done lot of the concrete mix designs of M40. So therefore, I have the confidence that by reducing the water cement ratio to 0.36, I can achieve the strength of 40 Newton per mm square. Okay, because it is given in IS also that either you take the help of table 5 or with your past experience, you can adopt the water cement ratio. Now the next step is the selection of the water. Okay, uh, I think you all must have gone through the notes as well as this IS 10 to 62 2009, table 2, page 8. For 20 MSA concrete, water content is 186 kilograms. However, as the superplasticizer is used, water content is reduced to almost 18% to 153 kilograms. Okay, so you please recollect why this water, the quantity of water, and how this quantity of water either increased or decreased. Okay, so this is decreased with the help as we are using the super plasticizer by almost 18%, 153 kilogram. So with water cement ratio of 0.36 and with the cement of 153 kilogram, the cement calculated found out to be 425 kilograms. Okay, और है ना, ये कैलकुलेशन ये इसमें क्या नहीं है, सिर्फ सीमेंट नहीं है. So we can find out the cement as 425 kilograms. The maximum cement to be used is 425. The Indian standard, again table 5, page 20 of 456 says that as per the exposure condition, that is the durability condition, that 360 kilogram per m cube सीमेंट टू बी मिनिमम यूज. तो हमारा 360 से ज्यादा ही आ रहा है 425, तो इट इज बेटर टू यूज द 425 kg. ठीक है, एंड ऑल्सो द इंडियन स्टैंडर्ड हैज सेड that also the as per this para 8.2.4.2 page 19 that maximum cement to be used is 450. तो इससे भी हमारा कम है, तो इट्स ऑल राइट द सीमेंट क्वांटिटी. ठीक है, अभी पहले ट्रायल किया और हम मुड़ रहे हैं, यानी हमने अभी तक के क्या क्या किया कि हमने वाटर सीमेंट रेशियो फाइनल किया, वाटर कैलकुलेट किया और सीमेंट. अभी क्या बचा है, सिर्फ हमारा एग्रीगेट बचा है. ओनली एग्रीगेट इज रिमेनिंग. ओके, सो वाटर सीमेंट रेशियो प्रपोज्ड इज 0.36, water proposed is 153 kilogram, and cement calculated as 425. Okay, so again writing that equation, that absolute volume of the fresh concrete is 1 cubic meter m cube, mass 153 of the water, mass of the cement is 425, then specific gravity of cement is 3.15, specific gravity of the fine aggregate is 2.66, and for the coarse aggregate 2.83. You please recollect that equation. 1 cubic meter is equal to volume of the cement plus volume of the water plus volume of the admixture plus volume of the aggregate. All these masses are converted into volume by dividing their specific gravity. अब ये तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने वर्कआउट किया है, सीमेंट की, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की. सैंड जो है, वो जो सैंड आई है वो ये जोन आपको बताया था. ठीक है, तो अभी देखते हैं, मुझे लगता है सैंड शायद जोन 1 की या जोन 2 की होगी. लेट अस सी. फॉर मोर वर्केबल कंक्रीट पंपेबल अराउंड कंजेस्टेड इट मे बी डिजायर टू रिड्यूस द एस्टिमेटेड कोर्स एग्रीगेट बाय 10%. ठीक है, अभी आगे में हमें कोर्स एग्रीगेट निकालना है, तो उसके लिए हमें जोन ऑफ द सैंड इज रिक्वायर्ड. सो द
वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट वी हैव कन्वर्टेड, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर वी हैव कन्वर्टेड, सीमेंट के मास को हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी से और 1/1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सीमेंट का वॉल्यूम आया, ये वाटर का वॉल्यूम आया। केमिकल एडमिक्सचर जो है ये हमने 1.1% बाय मास ऑफ द सीमेंटिशियस दैट इज सीमेंट हमने निकाला। क्योंकि सीमेंट 425 है तो उसका 1.1% 4.6775 kg है, इसलिए उसका वॉल्यूम जो है फिर से मास को स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड किया और 1000 से भी डिवाइड किया तो ये उसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये सैंड जो है ये हमारी जोन 2 की आई है, जो हमने सैंड का ग्रेडेशन करने के बाद में, तो इसलिए जो एग्रीगेट का परसेंटेज है वो 62% आया है ना। टेबल नंबर 3 पेज नंबर 9 ऑफ IS 10/2/62। तो कोर्स एग्रीगेट 62% है, तो फाइन एग्रीगेट बचा हुआ 38% है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट कंटेंट इज 1 माइनस द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ द एडमिक्सचर, ये हमने इसमें से डिडक्ट किया, तो वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट यह है 0.708 क्यूबिक मीटर। अभी इसका 62% जो है ये कोर्स एग्रीगेट का मास है, तो इसलिए 0.708 मल्टीप्लाइड बाय 62%, ये 0.708 इज द वॉल्यूम ऑफ द टोटल एग्रीगेट multiplied by the volume of the coarse aggregate multiplied by specific gravity of the coarse aggregate multiplied by 1000 has given me the weight or mass of the coarse aggregate as 1242.257 kg। वैसे ही फाइन एग्रीगेट का भी मैंने निकाला 0.708 into 0.38 that is 38% multiplied by उसकी specific gravity multiplied by 1000, तो 715.645 is the mass of the fine aggregate। ठीक है, तो ये पहला जो मिक्स प्रोपोर्शन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10/2/62 उसको हम IS ट्रायल करके या इंडियन स्टैंडर्ड ट्रायल बोलेंगे, तो उसमें वाटर 153, सीमेंट 425, फाइन एग्रीगेट 715 पॉइंट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, और वो एडमिक्सचर तो हमारा आया ही था, वो एडमिक्सचर आया था 4.675 किलोग्राम। ठीक है, ये वो टनेल का फोटोग्राफ है, ऊपर से लिया हुआ है, ये टनेल में एंट्री करने के लिए वेल थी ये, और इसके दोनों साइड में टनेल था। ये ट्रक दिखाई दे रहा होगा आप में, कितना बड़ा टनेल है इस पर से आपको पता चल सकता है। ये नागभीड़ के पास में है। ठीक है, अभी काम शायद खत्म हो गया होगा। द कैलकुलेटेड मिक्स प्रोपोर्शन ट्रायल 1 शैल बी चेक्ड बाय मींस ऑफ द ट्रायल बैचेस, तो उसका फिर हमने जो 9 क्यूब्स है, मैंने आपको कल बताया था 9 क्यूब्स फॉर द 3 days 7 days एंड द 28 days as well as for one slump cone, the quantity I have found out volume, total volume, मैंने आपको बोला था आप मुझे कैलकुलेट करके आज बताएंगे करके, तो किसी ने कैलकुलेट करके लाया कि नहीं, जरा मुझे आखिरी में बताइए। क्या बताया था मैंने कि मैंने तो 12 क्यूब्स का बोला था, 12 क्यूब्स, वन एक्सेलरेटेड क्यूरिंग टेस्ट के लिए फॉर द 12 क्यूब्स ऑफ साइज 15 by 15 by 15 सेंटीमीटर्स, that is 0.15 by 0.15 by 0.15 क्यूबिक मीटर, यानी तीनों का मिलके क्यूबिक मीटर, और एक स्लम कोन। स्लम कोन का साइज मैंने बताया था 20 सेंटीमीटर बॉटम, 10 सेंटीमीटर टॉप और 30 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वो क्यूब के लिए और वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए ये ट्रायल 1 जो अभी निकाला, जिसको IS ट्रायल बोलेंगे, उसका कंक्रीट बनाया और उसकी वर्केबिलिटी मैंने टेस्ट किया, और मैंने ऐसा करने के बाद में आया कि भाई ये कंक्रीट अच्छा बन गया है, और थोड़े से मैंने वेरिएशन किया कि थोड़ा ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस। ये फिर से वो टनेल का, ये टनेल के अंदर से फोटो है, ऊपर का ये वेल है, टनेल में घुसने के लिए ऐसी वेल से अंदर जाना पड़ता था, जमीन के नीचे लगभग 30-40 मीटर वो टनेल था। तो वो टनेल का जो कंक्रीट रहता है बाजू का, ये जो कंक्रीट दिख रहा है ये कंक्रीट का, ये मिक्स डिजाइन मैंने किया था। ठीक है, तो वो चेंजेस कैरी करने के बाद में जो अभी पहले ट्रायल में है, आई हैव फाइनलाइज्ड द कंक्रीट एज पर ट्रायल नंबर 1
और उसके बाद में मैंने क्या किया कि वाटर क्वांटिटी कांस्टेंट रखते हुए I have reduced the cement. Okay, I have reduced the cement, and for the reduced cement, I have found out all the other ingredients. That is the water. Water is constant, so therefore, by reducing the cement by 5 kgs, अभी दिखेगा आगे में आपको, और कम करके बाकी इंग्रेडिएंट जो है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, एडमिक्सचर, लेकिन पानी कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो ये मैंने 4 ट्रायल इसके बनाए। पहला ट्रायल इंडियन स्टैंडर्ड ट्रायल, आईएस ट्रायल, दूसरा ट्रायल 1 2 3। आई हैव केप्ट द क्वांटिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट 153 लीटर्स। ठीक है, ऐसा टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, ये टेबल चारों जो ट्रायल है इसके कैलकुलेशन जो मैंने अभी आपको पहले ट्रायल के बताया उस हिसाब से चारों ट्रायल के किया। उसमें वाटर कांस्टेंट रखा और सीमेंट जो पहले ट्रायल में 425 था उसको 9 किलो से कम किया, वो 416 किया, फिर 6 किलो से कम किया, 410 किया, और फिर 405 किया। क्यों किया? क्योंकि हमें इकोनॉमी करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दोस 3 प्रॉपर्टीज। लेकिन मैंने ऐसा करके, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा विथ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा था कि ये 425 केजी भी बहुत ज्यादा सीमेंट है, लेकिन कोई हरकत नहीं। फिर करस्पॉन्डिंग टू दिस सीमेंट एंड कांस्टेंट वाटर, द वाटर सीमेंट रेशियो आई हैव रिटन हियर, and corresponding to this I have found out all the coarse fine aggregate, that is the sand, and the coarse aggregate। वो 20 MSA का था, इसलिए 40 mm में कुछ भी नहीं आएगा। 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट मैंने यूज किया, और वो 60-40 प्रोपोर्शन में यूज किया। ठीक है, ये फिर से ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आने के लिए हमें करना पड़ता है। वो कैसा है फिर से प्रैक्टिकल ही करके आपको समझेगा कि 20 mm एग्रीगेट कितना यूज करना चाहिए, और 10 का एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 383 में दिया है कि दोनों का मिक्स करके वेल ग्रेडेड एग्रीगेट कैसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया चारों ट्रायल के इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद में प्लास्टिसाइजर भी आ गया। ठीक है, हर इसके लिए प्लास्टिसाइजर कितना है वो भी वर्कआउट किया मिलीलीटर्स में। ठीक है, और फिर इसकी मैंने 7 डेज और 28 डेज स्ट्रेंथ वर्कआउट किया। आफ्टर 7 डेज क्यूरिंग के बाद में 7 डेज स्ट्रेंथ, ये इस ऑर्डर में आई एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 428, और फिर कम कम होते गई क्योंकि सीमेंट कम करते गए अपन। और 28 डेज स्ट्रेंथ जो है, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ चाहिए 482.5, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ पहली ट्रायल के लिए कितने आई, 522, 501, 481 और 475। ठीक है, ये मिक्स प्रोपोर्शन है। इसमें पहला सीमेंट है पहला वाटर सीमेंट रेशियो है 0.4007, फिर सीमेंट है 1, फिर फाइन एग्रीगेट है, और फिर कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन है। अभी मैंने ये सब करके अचीव क्या किया, ये देखिए, ये सब इतना सीमेंट बचाने का काम किया मैंने। 1 क्यूबिक मीटर में 2% और लगभग 4%, लगभग 5%। ठीक है, और वाटर सीमेंट रेशियो ये बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ द सीमेंट एंड बाय यूजिंग द प्लास्टिसाइजर। और फिर ये जो स्ट्रेंथ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है कल मैंने आपको बताया था, समझा दिया था कि हमें क्या करना है फिर आखिरी में, कि ये जो 4 ट्रायल है आपके, ट्रायल 1, आईएस ट्रायल 1 2 3, ये चारों ट्रायल के आपके पास में 28 डेज स्ट्रेंथ आ गई है। अभी आप 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद में आपने लेबोरेटरी में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला। दिस इज ऑल इन केजी पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, 522 से लेके तक 475, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑल आर द वाटर सीमेंट रेशियोज। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी, वो एब्राहम्स लॉ अपन पढ़ते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ते जा रहा है तो ये स्ट्रेंथ कम होते जा रही है। ठीक है, ये यही प्रूव हो जाता है एब्राहम्स लॉ, और यही हम लेबोरेटरी में भी अचीव कर सकते हैं। तो ये करने के बाद फिर मैंने वाटर सीमेंट रेशियो और ये जो 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है इसका ग्राफ प्लॉट किया।
यहाँ पे आपको दिखेगा वाटर सीमेंट रेशियो वर्सेस विथ स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्सेल में किया, MS एक्सेल। और ये करने के बाद में अपने को जो स्ट्रेंथ चाहिए वो कौन सी चाहिए थी, ये चाहिए थी 482.5 टारगेट मीन स्ट्रेंथ। So corresponding to this 482.5, I have found out the water cement ratio as 0.4216। ठीक है, यानी हम पहले 1, 2, 3 और 4, ये 4 ट्रायल 1, 2, 3 एंड 4, और फिर ये जो बीच में का है फॉर द 482.5 टारगेट मीन स्ट्रेंथ, आई हैव फाउंड आउट द वाटर सीमेंट रेशियो। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस वाटर सीमेंट रेशियो, water is constant, so therefore I have found out all the remaining, that is the cement, sand for 20 mm and 10 mm। ठीक है, so with this we will move to the last part of the today's lecture। मुझे लगता है कि आपके सबके ध्यान में आ गया है कि मुझे आपको क्या क्या समझा देना था। so this is road note number 4, हम हमारे सिलेबस में है, ग्रेडिंग कर्व मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अब्सोल्यूट मेथड है, अब्सोल्यूट यानी ये कोई हमारे इंडिया में यूज नहीं होती है, और ये जहां यूज होती थी यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे भी अभी ये इसको DOE मेथड करके बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ये रोड नोट नंबर 4 बहुत पुरानी मेथड है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, it is based on the extensive laboratory and field experiments carried out by the Road Research Laboratory, United Kingdom, and it is published in 1950 as Road Note number 4। ठीक है, so this is actually the United methods used in United Kingdom, but again on these experiments, all the Indian standard and all of their methods have developed। क्या किया इसमें, it has been established a relationship between the various properties of the concrete and the variable parameter, है ना। कोई भी concrete mix design जो है, ये कोई भी ऐसा मैथमेटिकल नहीं है जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन में है कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये सब ट्रायल एंड एरर एंड विथ पास्ट एक्सपीरियंस है। अब्राहम्स लॉ है, तो अब्राहम ने कोई उसको खोज के कब निकाला, जब उसके ये ध्यान में आ गया कि वाटर सीमेंट रेशियो यदि बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, वाटर सीमेंट रेशियो कम कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है। तो तब ये आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑल दीज कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन मेथड्स आर डेवलप्ड। तो उसमें ये जो रोड नोट नंबर 4 है, इसमें क्या है कि ये मेथड डेवलप करते वक्त उन्होंने कंक्रीट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे कि स्ट्रेंथ है, जैसे कि वर्केबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, these are related with the various parameters of the ingredients, and then with the use of this relation between these two, they have found out the final ingredients of the concrete। A series of standard grading curves have been established to give grading limits for all in one agreement graded down from 20 to 40 mm। Therefore, it is called as a grading curve method। है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रेडिंग कर्व्स बनाए गए विथ रेफरेंस टू द वर्केबिलिटी एस्पेक्ट, विथ रेफरेंस टू द क्वांटिटी ऑफ द वाटर, वो आगे में देखेंगे हम। तो इसलिए इसको रोड नोट नंबर 4 मेथड। अब इसकी स्टेप्स, ठीक है, मैंने बोला आपको कि एग्जाम में आपको राइट डाउन दी स्टेप्स ऑफ रोड नोट नंबर 4 और DOE मेथड ऐसा बोलते हैं, तो आपको ये स्टेप लिखना है, आपको स्टेप्स के मार्क मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, अब सबसे पहली स्टेप जिसको आप स्टेप फर्स्ट बोलेंगे, वो तो वही है, डाटा शीट एंड सबमिशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज सबमिशन ऑफ द डाटा शीट एंड द मटेरियल। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। इसमें भी वैसा ही, टारगेट मीन स्ट्रेंथ फ्रॉम द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। So target mean strength is again that specified characteristic strength plus standard deviation plus risk factor। ठीक है, प्रोसीजर सेम, सिर्फ इसमें हमें बहुत डिटेल में ना, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में टेबल और वो सब रेफरेंसेस है, क्योंकि ये आउटडेटेड मेथड है, तो सिर्फ हमें प्रोसीजर पता करना है।
ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, स्टेप्स पता करना है। तो वैसा ही है। अब इसमें रिस्क फैक्टर जो है, जो जिसको हम हिम्सवर्थ कोएफिशिएंट करके बोलते हैं, is based on the assumption that 5% of the results are allowed to fall less than specified characteristic strength। यानी 5% रिजल्ट ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम आए तो चलेगा, ये बेसिस के ऊपर में ये रिस्क फैक्टर बनाया गया है। तो चलो हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ वर्कआउट कर लिया, ठीक है। अभी तक के आपके ध्यान में आया होगा आईएस मेथड में जैसे किया। तो स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी M15, M20, M25, इसमें से जो 25, 15, 20 बताता है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। स्टैंडर्ड डेविएशन आइदर फ्रॉम द रेडीमेड टेबल और विथ कैलकुलेशन, और रिस्क फैक्टर। तो ये 5% रिजल्ट, तो ये हिसाब से हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, ऐसा आप समझ लीजिए। नाउ द सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द वाटर सीमेंट रेशियो यूजिंग टेबल, जो आगे के स्लाइड में है, आपके नोट्स में भी है, टेबल 11.11 and figure 11.3। Next step is calculate the water cement ratio. So the first step is preparation of the data and submission of the data. Second step is testing of the material. Third step is find the target mean strength. Write down the formula. Target mean strength is equal to characteristic strength plus standard deviation into risk factor. Next step is calculate the water cement ratio यूजिंग दिस टेबल्स। क्या है वो आगे में हम देखते हैं। ये टेबल है, ठीक है, ये आपके नोट्स में भी मैंने दिया है। ये टेबल क्या बताता है? दिस टेबल शोज 3 days, 7 days, 28 days एंड द 91 days स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ बताता है। और ये टेबल और काय से रिलेटेड है? ये टाइप ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, यानी अनक्रश्ड यानी स्फेरिकल ऐसा एग्रीगेट है तो उसको अनक्रश्ड बोलेंगे, जो फोड़ा नहीं है। क्रश्ड एग्रीगेट, फिर से अनक्रश्ड और क्रश्ड। और ये साइड में टाइप ऑफ सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टाइप 1, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट टाइप 5, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड द पोर्टलैंड सीमेंट टाइप 3। है ना, उस टाइम में पोर्टलैंड सीमेंट अलग अलग प्रकार के होते थे। 1950 का है ये, तो उस टाइम में वो यूके में ये ओपीसी टाइप 1, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट टाइप 5, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट टाइप 3 वगैरह थे। तो ये टेबल में से हमारे को यदि सीमेंट मालूम है कौन सा हम यूज कर रहे हैं और एग्रीगेट कौन सा है वो मालूम है, ओके, देन वी कैन फाइंड आउट द टारगेट, द स्ट्रेंथ, 28 day strength from this table। okay, so let us presume that we have and this gives the with a free water cement ratio of 0.5। ये जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ 0.5 का वाटर सीमेंट रेशियो कंसिडर करके आई है, ठीक है। सो यूजिंग दिस टेबल फाइंड आउट द 28 day स्ट्रेंथ एंड विद दिस सीमेंट वैल्यू एंड विद दिस एग्रीगेट वैल्यू, इसमें से हमारा जो भी है वो देखते हुए फाइंड आउट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, 28 day स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ को यूज करके अब अगला जो ग्राफ है वो ग्राफ में इसका में से हमें वाटर सीमेंट रेशियो कैसा वर्कआउट करना है वो देखते हैं हम, ठीक है। दिस इज द ग्राफ वेयर इन जो हमने अभी 28 डे स्ट्रेंथ वर्कआउट किए हैं पिछले टेबल से, ये टेबल में से जो भी 28 डे स्ट्रेंथ वर्कआउट किया है या हमने जो फाइनलाइज किया है वो करस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी हम ऐसा समझते हैं कि हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टाइप 3 है और क्रश्ड एग्रीगेट है, तो उसकी 28 डे स्ट्रेंथ आएगी 55, ठीक है। सो 20 फॉर 55 28 डे स्ट्रेंथ यहां आएगी, इसके बीच में कहीं तो भी 55 यहां पे दिख रहा है ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और ये वाटर सीमेंट रेशियो। तो बिटवीन 50 एंड 60 इट विल बी 55 समवेयर हियर। तो ये 55 जो है ये करस्पॉन्डिंग टू दिस 55 या ये जो स्ट्रेंथ है ये करस्पॉन्डिंग टू दिस 55 ड्रॉ ए
पॉइंट ऑन दिस वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे 55 का पॉइंट मार्क कर दीजिए आप. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज फाइनलाइज द location of the compressive strength that has been found from table number 11.11. ठीक है, which is so corresponding to this 55. ये जो 55 का आपने पॉइंट फाइनलाइज किया, ये दिस पॉइंट विल इंटरसेक्ट, ये जो ग्राफ है आपका इससे करस्पॉन्डिंग, ये ग्राफ काय में है, ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो. तो ये जैसा ये ग्राफ है, ये ग्राफ है 70 के स्ट्रेंथ का, ये ग्राफ है 60 के स्ट्रेंथ का, ठीक है, ये ग्राफ है 80 के स्ट्रेंथ का. तो ऐसा जो 55 के करस्पॉन्डिंग जो है, जो आएगा 55 के स्ट्रेंथ का, तो वो 55 की स्ट्रेंथ का भी एक पैरेलल ग्राफ आप निकाल लीजिए. ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कहीं तो भी अभी इनकी जो स्ट्रेंथ आई है वो 60 to 70 के बीच में आई है. ठीक है, ये समझो कहीं तो भी द स्ट्रेंथ हैज कम बिटवीन 60 to 70. So they have drawn a parallel graph corresponding to that strength between 70 to 80, और उसका वर्टिकल, अब ये 55 उसको क्रॉस कीजिए और उसका वर्टिकल नीचे लीजिए, वो कहीं तो भी वाटर सीमेंट रेशियो को कट करेगा नीचे. ठीक है, वो जो वाटर सीमेंट को कट करेगा, टेक दैट वाटर सीमेंट रेशियो. ठीक है, हमारा आईएस मेथड में क्या था कि वो टेबल नंबर जो दिया था 5 ऑफ पेज नंबर 20, उसमें हम वाटर सीमेंट रेशियो फाइनल करते थे. अब यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कैसा फाइनल करना है कि पहले हमें तो स्ट्रेंथ फाइनल करना है, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेंथ, यानी जो करस्पॉन्डिंग, जैसे अभी यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ये जो टेबल है, ये टेबल फॉर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, 28 स्ट्रेंथ इज 49. ठीक है, हमारा सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टिंग, द स्ट्रेंथ इज 49. देन करस्पॉन्डिंग टू दिस 49, इसके बीच में आएगा कहीं तो भी 49, करस्पॉन्डिंग टू दिस 49 एंड विथ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5, ये जो फिगर है करस्पॉन्डिंग टू 49 एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5, locate the point. Okay, you are getting me? वो पिछले टेबल से हमने क्या किया कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और क्रस्ट एग्रीगेट के लिए स्ट्रेंथ निकाला 28 डेज, वो स्ट्रेंथ आई 49, और वो जो टेबल में की स्ट्रेंथ वो जो है वो 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है. तो करस्पॉन्डिंग टू 0.5 एंड दैट 49, ये एक पॉइंट लोकेट हो गया. ये पॉइंट लोकेट हो गया, इसमें से इसके ऊपर का जो ग्राफ है वो ग्राफ को पैरेलल ग्राफ हमने निकाला. ठीक है, पैरेलल ग्राफ, ये जो नीचे का डॉटेड ग्राफ दिख रहा है. अब ये ग्राफ के ऊपर में हमारी जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ को इसके ऊपर में हमें लोकेट करना है, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट टारगेट मीन स्ट्रेंथ वी हैव टू फाइंड आउट द वाटर सीमेंट रेशियो. ओके, so a parallel dotted curve is drawn to the neighboring curve. Water cement ratio is read off on this dotted curve for any target mean strength. ये dotted curve के ऊपर में, ये जो नीचे में दिख रहा है dotted curve, इसके ऊपर में हमारी जो target mean strength है, corresponding to that target mean strength, we have to find out the water cement ratio. ठीक है, तो अभी हमने क्या वर्कआउट किया, वाटर सीमेंट रेशियो वर्कआउट किया. अभी नेक्स्ट इसमें है वी विल फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर. ओके, अब ये भी रेडीमेड टेबल दिया है रोड नोट नंबर 4 में. ये वर्केबिलिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्लम्प और द वीबी टाइम, यानी जैसे यहाँ पे वर्केबिलिटी दिया है स्लम्प
और वीबी इन सेकंड्स। हमने वीबी टेस्ट देखा था, हमने वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए। तो वीबी सेकंड और slump is also given in millimeters, and corresponding to the type of the aggregate, uncrushed, crushed, uncrushed, crushed, and maximum size of aggregate। और एक टेबल और है इधर कि आप यदि फ्लाई ऐश या कोई एडमिक्सचर यूज करते हैं तो आप वाटर जो है वो फ्री वाटर कंटेंट इतना कम कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश इज 10%, 20, 30%, and if these are the slump and the VB values, so this much quantity of the water you can reduce। Okay, so first we will try to understand कि समझो ये 20 mm का कंक्रीट है, 20 mm, और क्रस्ट एग्रीगेट है, और यदि हमें समझो 30 to 60 mm का स्लम्प है तो वाटर क्वांटिटी होगी 210 किलोग्राम और 210 लीटर्स। तो हमें इस पर से करस्पॉन्डिंग टू द स्लम्प, that is the workability or the VB time, and corresponding to the maximum size of aggregate and the type of aggregate, as well as whether admixture is used or not, we can finalize the quantity of water। So the water cement ratio is finalized, now the quantity of the water is finalized, so therefore we can find out the cement content। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो मालूम है, पानी भी मालूम है, तो सीमेंट कंटेंट हमें मालूम हो गए। अभी क्या बचा है, अभी सिर्फ एग्रीगेट बचा है कि भाई एग्रीगेट कैसे निकालना। ठीक है, टू नाउ इन दिस मेथड, दैट इज द रोड नोट नंबर 4 मेथड, है ना, जिसको ग्राफिकल मेथड या कर्व मेथड भी बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे कर्व्स का यूज है। जैसे अभी तक के हमने देखा कि एक कर्व है जिसका यूज करके हम वाटर सीमेंट रेशियो फाइनलाइज कर सकते हैं, और एक टेबल भी अभी देखा कि जिसका यूज करके हम वाटर फाइनलाइज किए। अभी जो नेक्स्ट 2-3 कर्व हम देखने वाले हैं, with the use of those curves we can find out the quantity of the coarse aggregate as well as fine aggregate। ठीक है, तो अभी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एग्रीगेट है हमारे पास में वो एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्कआउट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, so corresponding to the specific gravity and corresponding to the quantity of water that has been finalized। ठीक है, हमने जो भी वाटर अभी क्वांटिटी वर्कआउट किया था, तो ये दो चीजें यदि हमें मालूम है, समझो 180 लीटर पानी 1 क्यूबिक मीटर के वर्कआउट किया, और यदि 2.8 इज द इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, 180 is the water and 2.8 is the specific gravity, then horizontally ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर में है कंक्रीट की वेट डेंसिटी, यानी गीले कंक्रीट की डेंसिटी। तो ये वेट डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द वाटर एंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने वर्कआउट किया नहीं है तो वो उन्होंने दिया है कि भाई आप अनक्रश्ड एग्रीगेट के लिए 2.6 एज्यूम कर सकते हैं और क्रश्ड एग्रीगेट के लिए 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय नोइंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बाय नोइंग द वाटर कंटेंट यू कैन फाइंड आउट द वेट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, वेट डेंसिटी का यूनिट क्या रहता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वेट कितना है गीले कंक्रीट का, WEIGST वेट एंड WET वेट, WET यानी गीला और WEIGST यानी वेट। सो वेट कंक्रीट का वेट 1 क्यूबिक मीटर का कितना है उसको हम डेंसिटी बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये with the knowledge of the specific gravity and the water we can find out the weight density। तो वेट डेंसिटी यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वेट, तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वेट यदि हमें पता चल गया, मास पता चल गया, हमारे को पास में वाटर का मास है, हमारे पास में सीमेंट का मास है, हमारे पास में एडमिक्सचर का मास है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, यदि हम फ्लैश यूज करते तो फ्लैश का है, तो जो बैलेंस है रिमेनिंग है वो है मास ऑफ द एग्रीगेट। सो फ्रॉम दिस
the aggregate content is obtained by subtracting the weight of the cement and the water as well as the admixture from the weight of the fresh concrete. ये टेबल पे से हमने जो भी वेट निकाला यानी डेंसिटी निकाला, वेट डेंसिटी, तो हमें वी कैन फाइंड आउट द एग्रीगेट कंटेंट. अब ये टोटल एग्रीगेट हो गया, ठीक है. अब ये किलोग्राम में हो गया, बोला मास वेट में आ गया, मास में आ गया. अब इसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कितना है, ये कैसे निकालेंगे. फिर से रोड नोट नंबर जो 4 है, उन्होंने 4 टाइप के ग्राफ दिए हैं. ये 5 उसमें उन्होंने ये ग्राफ है, इट इज द ग्राफ बिटवीन द वाटर सीमेंट रेशियो. ओके, इट इज द ग्राफ बिटवीन द वाटर सीमेंट रेशियो, द वेरियस वैल्यूज ऑफ द स्लम्प. Okay, various values of the slump, the proportion of the fine aggregate or percentage of the fine aggregate is given here for the various sizes of the aggregate: 15 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm. For the various aggregate sizes, okay, for various aggregate sizes, the ready-made tables are given which gives the proportion of the fine aggregate, which is also based on the slump. Slump 0 to 10 है, 10 to 30 है, ठीक है. For the various slumps and for the various sizes of the aggregate, the percentage of the fine aggregate is given. ठीक है, हमारे को slump मालूम है, हमारे को water cement ratio मालूम है, हमारे को size of the maximum size of the aggregate मालूम है, तो we can find out the percentage of the fine aggregate. और हमारे को तो टोटल कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज अभी मिला ही है. ये जो हमने अभी ये डेंसिटी के कंक्रीट की निकाला और वो 1 क्यूबिक मीटर डेंसिटी से सीमेंट का वेट डिडक्ट किया, वाटर का वेट डिडक्ट किया, एडमिक्सचर का किया डिडक्ट, तो उसमें एग्रीगेट का वेट आ गया. वो एग्रीगेट के वेट के कुछ परसेंट जो फाइन एग्रीगेट का परसेंट, ये हमारे टेबल को मिल गए. ये चारों टेबल हमारे पास में है for the various maximum size of the aggregate and for the slump or for the VB time we get the percentage of the fine aggregate. Okay, so from this table we can find out the percentage of the fine aggregate. So by knowing the percentage of the fine aggregate we can find out the weight of the fine aggregate. और वो total weight aggregate के weight में से fine aggregate का weight deduct किया, तो we can get the weight of the coarse aggregate. So once proportion of the fine aggregate is obtained, multiplying by weight of the total aggregate gives the weight of the fine aggregate, and by deducting the weight of the fine aggregate from the total aggregate will give you the weight of the coarse aggregate. ठीक है. अब उन्होंने और एक proportion of the coarse aggregate fraction, कितना कितना coarse aggregate समझो, out of the 100%, 33% should be 5 to 10, 67 should be 10 to 20, या 40 mm का भी है तो कितना, ये प्रोपोर्शन वेल ग्रेडेड के लिए दिया है. ठीक है. सो प्रोपोर्शन सो वर्कड आउट शुड बी अगेन, फिर से इसकी ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ट्रायल 4 ये करना है. फर्स्ट ट्रायल में फिर से आपको देखना है कि भाई आपका कंक्रीट का गोला बनता है, होमोजीनियस हुआ है कि नहीं, कि सेग्रीगेटेड है. यदि नहीं हुआ है होमोजीनियस तो आप कुछ कोर्स एग्रीगेट कम कर सकते हैं, नॉमिनल फाइन एग्रीगेट उतना बढ़ा सकते हैं, या बहुत कोहिजिव हुआ है तो आप थोड़ा सा फाइन एग्रीगेट करके थोड़ा कोर्स एग्रीगेट बढ़ा सकते हैं. लेकिन आपको पानी से छेड़छाड़ नहीं करना और सीमेंट से छेड़छाड़ नहीं करना पहले ट्रायल के लिए. फिर हमें फिर से इकोनॉमिकल करना है, तो फॉर द वेरियस अदर 3 to 4 ट्रायल्स आइदर रिड्यूस द सीमेंट बाय सम 5%, 10%, 20%, or one trial you can do with the increased cement. Again, काय के लिए? To get the graph between the water cement ratio, and the strength, and for the required target mean strength, again find out the water cement ratio and remaining proportions. ठीक है. ये रोड नोट नंबर 4 के ड्रॉबैक क्या है, यानी ये क्यों अभी हमारे यहाँ पे यूज नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सीमेंट का कंटेंट आता है, वेरी हाई सीमेंट कंटेंट. ठीक है. और एक आधे बार हमारे पास में वेल ग्रेडेड एग्रीगेट नहीं है, समझो 40 MSA का है और 40 MSA में 40 mm है,
20 mm है लेकिन 10 mm का एग्रीगेट नहीं है, 40 का है, 10 का है, 20 का नहीं है, तो वैसे इसमें ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है, उसको गैप ग्रेडेड aggregate बोलते हैं. So gap graded aggregate does not fit here. It is difficult to adjust the sand content to match any standard combined gradient curves. ठीक है, थोड़ा sand को भी मैच करने में तकलीफ जाती है. Different aggregates to cement ratios are given. है ना, aggregate to cement ratio is also important. Water cement ratio जैसा. तो ये for the different aggregate to cement ratios, the levels of the workability ranging from low to high. But this here the agreement to cement ratio for the various workability is not specifically mentioned, which is mentioned in Indian Standard 10-62. Okay, so all these drawbacks has resulted into development of the other methods. More technical, more scientific methods are developed. Okay, though it is not used in India, it is absolute, यानी आउटडेटेड हो गई है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, इसके सब स्टेप्स ध्यान में रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है. यूनिट नंबर 4 में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ द एडमिक्सचर्स देखा. शुरू में एडमिक्सचर्स और एडिटिव्स की डिफरेंस क्या है वो देखा, एडमिक्सचर्स के टाइप देखा, मिनरल एडमिक्सचर के टाइप देखा, केमिकल एडमिक्सचर के टाइप देखा, उसका वर्किंग फंक्शनिंग समझ लिया. और उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने कंक्रीट मिक्स डिजाइन यानी क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द कंक्रीट मिक्स डिजाइन, व्हाट आर द थिंग्स टू बी थॉट ऑफ व्हाइल डिजाइनिंग द मिक्स ऑफ द कंक्रीट, यानी कंक्रीट मिक्स डिजाइन, या इसको ही प्रोपोर्शनिंग द मिक्स बोलते हैं. है ना, तीनों चार धीरे 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 आप इससे वाकिफ होंगे. यू विल बी कॉन्वर्सेंट विद दिस वर्ड्स. व्हाट इज कंक्रीट मिक्स डिजाइन, आप नोट्स जरूर पढ़िए. और फिर से आखिरी में मैं बोलता हूँ कि ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन की जो प्रोसेस दिया है इंडियन स्टैंडर्ड 10-62 या रोड नोट नंबर 4, ये सिर्फ गाइडलाइन है, या ये हमें पाथ बताया गया है, रास्ता बताया गया है कि आपको जो स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए, आपको जो वर्केबिलिटी का कंक्रीट चाहिए, जो ड्यूरेबिलिटी का कंक्रीट चाहिए, उसके लिए आपने कैसे रास्ता तय करना चाहिए, ये उन्होंने प्रोसीजर, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड ने दिया इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंस है, या रोड नोट ने जो दिया है इसलिए उसको भी इंपॉर्टेंस है. और इंडियन स्टैंडर्ड मेथड तो हम यूज ही करते हैं हमारे भारत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे कैलकुलेट करने के बाद जो भी प्रोपोर्शन आएंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए, और जो मैंने आपको बताया कि समझो 12 क्यूब और 1 स्लम कोन के लिए जो प्रोपोर्शन आएंगे, उसका हमने वर्केबिलिटी और बाकी कंक्रीट कास्ट किया और गोला बना के देखा. वो यदि अच्छा नहीं होता है, वो कंक्रीट यदि हार्श होता है, कहीं तो भी सेग्रीगेशन होता है, तो जो लैबोरेटरी इंजीनियर है, वो लैबोरेटरी इंजीनियर को ये पावर दिए गए कि वो थोड़ा सा एग्रीगेट में वैरी कर सकता है. ठीक है, पानी में नहीं करेगा छेड़छाड़, थोड़ा सा एडमिक्सचर में बढ़ा घटा सकता है. यदि वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा आती है तो वर्केबिलिटी थोड़ा एडमिक्सचर कम कर सकता है. वर्केबिलिटी कम आती है तो विद इन 2% यानी इंक्रीज द एडमिक्सचर. ओके, सो इट इज ए रेसिपी. ठीक है, ये देख के आपको थोड़ी आपकी बोर नहीं होना चाहिए, हंसी आना चाहिए, थोड़ा ह्यूमर है. ये क्या है मुझे लगता है आप सब लोगों ने पहचाना होगा. ठीक है, ये हमारे जो एरिया का स्पेशलिटी है, हमारे विदर्भ की है, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र. आप अभी भी और जरा कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या है. ये हमारी मिसळ है. मिसळ होटल में खाते हैं ना मिसळ, तो ये मिसळ की एक रेसिपी है. ठीक है, हर जगह के मिसळ की टेस्ट अलग अलग रहती है ना. ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मिसळ आर लाइक द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट.
भले ही इसका प्रोपोर्शन इतने ग्राम ये लेके ये मिसळ बनेगी, लेकिन आखिर में ये जो बनाने वाला रहता है उसके स्किल के ऊपर में ये अच्छी बनती है। वैसे ही कंक्रीट मिक्स डिजाइन है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज एन आर्ट एंड रेसिपी, ये आप फाइनल ध्यान में रखिए। आपको रास्ता बताया गया है इंडियन स्टैंडर्ड, आपको रास्ता दिया है रोड नोट नंबर 4 में, लेकिन आखिर में आपको ट्रायल एंड एरर और प्रैक्टिस करके ही अच्छा कंक्रीट आप बना सकते हैं। जो आपको, आपकी जो वर्केबिलिटी है वो कितनी चाहिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, और जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सब लोगों के ध्यान में आ गया होगा। आपको मालूम है ये हमारे इंडिया में सब पुराने बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है। ओके, all these are thousands of the years old structure, they are all still surviving, अभी भी अच्छे हैं। तो ये मेरा कहना जो बार बार है, our concrete should be as durable as these monuments। ठीक है, यहाँ पे हम अभी ब्रेक लेते हैं, विल बी स्टॉपिंग हियर।